Hello students, welcome back in your EVS class. I hope you all are fine and healthy. So in our last class, we started with our chapter 3, producing food. What we learned that a farmer did many activities while cultivation. First of all, he prepares the soil, right? For preparing the soil, what activity he did? He did plowing and leveling. Plowing means he loosens up the soil, and leveling means he leveled the soil to prevent soil erosion, right? We also learned that after preparation of soil, what a farmer did? He sowing the seeds. It is done by hand and by seed drill also. And after sowing the seed, he add manure and fertilizers in the field for the growth of the crops, right? And manure is what? Manure is made from dung of farm animals, and fertilizers are chemical substances, right? So today we will learn further activity of a farmer, which is fourth one is irrigation. After manuring the crops, what he did irrigation. Irrigation is the process of watering the plants. Plants को पानी देना का process कहलाता है irrigation. The most important thing for the growth of plants is water. See, water is very much essential for the growth of plants. The process of watering the plants in the fields is called irrigation. और जो process होता है plants को water देने का, field में water पहुँचाने का, उसे क्या बोलते हैं हम? Irrigation. The major sources of irrigation are canals, wells and tube wells. नहर से, कुएं से और ट्यूब वेल से हम प्लांट्स को वाटर पहुँचाते हैं, इरिगेशन प्रोसेस करते हैं. Irrigation should be done properly. Both excess of water and scarcity of water, scarcity means कमी, shortage, are harmful for the crops. अगर ज़्यादा पानी चला जाएगा क्रॉप्स में तो उससे भी क्रॉप्स को नुकसान होएगा, वो ख़राब हो जाएंगी. एंड अगर पानी की कमी होएगी उससे भी क्रॉप्स को नुकसान हो सकता है. सो इरिगेशन process should be done properly. Irrigation can be done by various methods. It can be done by various methods. Irrigation by well, irrigation by tube well and irrigation by sprinkle. हम कुएं के जरिए अपनी क्रॉप्स से पानी पहुंचा सकते हैं. See, there is some process for it. Through tube wells we can irrigate the crops. And sprinkler आपने देखे होंगे, अगर आप गए होंगे कल्टिवेटेड लैंड में तो आपने देखे होंगे वहाँ स्प्रिंकलर लगे होते हैं, जैसे शॉवर की तरह वहाँ पे पानी आता है, तो उससे भी इरिगेशन प्रोसेस होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इरिगेशन, द वाटरिंग ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड. सो मूविंग फर्दर, वीडिंग. आई ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ वीड. वीड क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स हमारी फील्ड में अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं उसे हम वीड बोलते हैं. लाइक जैसे घास अपने आप ग्रो हो जाती है, सो वो हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होती है, उसकी वजह से हमारी क्रॉप्स की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती. सो उसके लिए अ फार्मर डिड द प्रोसेस ऑफ वीडिंग. ही uprooted the weeds. Many unwanted plants grow along with the crops. These unwanted plants are called weeds. The weeds also use water, nutrients of soil and sunlight along with the main crops. सी वीड्स हैं, जो घास होती है उसे भी तो पानी चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, एंड सनलाइट ऑल्सो. सो इसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है. सो दीज वीड्स बिकम एन ऑब्स्टैकल इन द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप्स. ऑब्स्टैकल मीन्स दे बिकम हर्डल और बैरियर. ये ब्लॉक कर देती हैं मेन क्रॉप्स की ग्रोथ को, राइट? बाधा कह सकते हैं जिसे. दे मस्ट बी रिमूव्ड. The process of removing weeds is called weeding. See, जो हम weeds को remove करते हैं अपनी field में से, उसी process को हम क्या बोलते हैं? weeding. Weeds can be removed by hand using tools like trowels and harrows. Weeds can be removed by hand and through tools like trowel and harrow. This is trowel and this is harrow.
right? So nowadays farmers use some chemicals called weedicides to destroy weeds. आज के टाइम में केमिकल्स भी आते हैं जो फील्ड पे छिड़क दिए जाते हैं जिसकी वजह से वीड्स ग्रो ही नहीं होती. So these are called weedicides. Now our sixth activity is crop protection. Protection from pest, कीटाणु, इंसेक्ट, इन सब से अपनी क्रॉप्स को बचा के रखना. What a farmer do? Farmers spray pesticides and insecticides to kill pests and other insects which are harmful for our crops. जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं और ऐसे पेस्ट्स होते हैं, उससे बचाने के लिए अपनी क्रॉप्स को What a farmer do? Farmers spray pesticides and insecticides. ये केमिकल्स आते हैं जो वो स्प्रे कर देते हैं क्रॉप्स पे. They put up scarecrow to scare away birds. Scare means डराना. तो स्केयर क्रो होता है, जैसे कि आपने अगर आप गाँव गए होंगे वहाँ पे खेतों में देखा होगा, ऐसे लगा होता है स्केयर क्रो, ये ताकि बर्ड्स ना आए और हमारी क्रॉप्स को नुकसान ना पहुँचाएं, उसके लिए स्केयर क्रो लगाया जाता है टू स्केयर अवे बर्ड्स, राइट. एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं फार्मर? द सीड्स आर सोक्ड इन फंगिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स बिफोर सोइंग दैम. जो सीड्स होती हैं बिफोर सोइंग दैम, उनको सिंक करके रखा जाता है फंगिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स केमिकल्स में. सोक मीन्स टू सिंक, मतलब सीड्स को भिगो के रखा जाता है फंगिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स केमिकल्स में, उनको अपनी फील्ड में डालने से पहले. फार्मर स्प्रे फंगिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स. जो क्रॉप्स हमारी होती हैं उन पे फार्मर स्प्रे करते हैं फंगिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से वो डिसीज से प्रोटेक्ट होती है हमारी सीड्स. एंड to protect our crops from pest, what a farmer do? They spray pesticides and insecticides and scarecrow लगाया जाता है बीचों बीच ताकि birds ना आए, right? So this is all about the crop protection. Now our seventh activity is harvesting. When the crop becomes mature and ripe means developed. जब हमारी क्रॉप्स मैच्योर हो जाती हैं और डेवलप हो जाती हैं कि हम उन्हें अब काट सकें, उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग. द प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर एंड राइप क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज डन आइदर बाय सिकल्स और मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर्स. सी दीज आर द टूल्स थ्रू विच वी कट द क्रॉप्स: hoe, spade, harrow, combine harvester and sickle. A combine harvester is a modern machine used for both reaping and threshing. It is used for both. ये जो combine harvester ये मशीन है, ये क्रॉप्स को कट करने में भी काम आता है. एंड थ्रेशिंग मीन्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप्स. जो क्रॉप में ग्रेन्स होते हैं हमारे, जो अनाज होते हैं, उसको सेपरेट करते हैं हम अपनी क्रॉप्स में से, उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं. सो ये जो combine harvester मशीन है, इट हेल्प्स इन बोथ द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड थ्रेशिंग. Reaping means cutting of crops, right? This is the seventh activity which a farmer do, which is harvesting. Now come to threshing. What the threshing is? The next step is the process of separating grains from the harvested crops. See, as I told you before, we separate the grains from the crops. This process is called threshing. In small fields, threshing is done by spreading the harvested crops on the ground and walking over it. सी जो स्मॉल फील्ड्स होते हैं वहाँ पे थ्रेशिंग इज़ डन बाय स्प्रेड कर दिया जाता है हार्वेस्टेड क्रॉप्स को. जो हमारी मैच्योर क्रॉप्स हैं उनको ग्राउंड पे फैला दिया जाता है और उनके ऊपर वॉक किया जाता है. दिस वर्क इज़ डन बाय एनिमल्स सच एज बुलॉक्स एंड कैमल्स. सो वो जो ग्रेन्स होते हैं वो अपने आप ही बाहर आ जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं हमारी क्रॉप्स में से. इन लार्ज फील्ड द थ्रेशिंग इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर. और जो फील्ड लार्ज होती है उसमें ये देखिए वीट थ्रेशर है, इसमें क्रॉप्स डाल दी जाती हैं और ग्रेन्स अपने आप अलग हो जाते हैं क्रॉप्स में से. सो लार्ज फील्ड में थ्रेशर का यूज़ किया जाता है. और वो जो स्मॉल फील्ड्स होती हैं, बुलॉक्स और कैमल्स की मदद से ग्रेन्स को अलग किया जाता है क्रॉप्स में से. सो दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. नाउ आवर नाइन्थ एक्टिविटी इज़ विनोइंग. सी विनोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चेफ और हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स. जो हस्क और चेफ क्या होता है? वो होता है ड्राई आउटर कवरिंग होती है सीड की, ग्रेन की.
लेट मी शो यू। दिस इज़ व्हाट चेफ इज़, जिसे हस्क बोला जाता है, ड्राई आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन। इसके अंदर ग्रेन्स होते हैं। सो इसे हमें विनोइंग के प्रोसेस से अलग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ैन चला दिया जाता है और ऐसे ग्रेन्स को डाला जाता है तो वो अलग हो जाते हैं हस्क। So after threshing, the chaff is separated from the grains by wind. This process is called winnowing. जो हम चैफ को, इसको हस्क भी बोला जाता है, ये ड्राई आउटर कवरिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये बहुत हल्के होते हैं, ये कवर होता है, उसको हम अपने ग्रेन से अलग कर देते हैं। इन दिस प्रोसेस द थ्रेस्ड ग्रेन्स, ये थ्रेस्ड आएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। जो थ्रेस्ड ग्रेन, थ्रेशिंग मैंने आपको बताया था, थ्रेशिंग इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम क्रॉप्स। जो हमने अपनी क्रॉप्स में से ग्रेन्स को सेपरेट किया है, उसके अंदर ये चैफ होते हैं। उस थ्रेस्ड ग्रेन में से हम इनको अलग करते हैं। कैसे? वी मेड टू फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द सर्टेन हाइट। जो थ्रेस्ड ग्रेन है हमारे, हम उनको ऊंचाई से, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा था, ऐसे ऊंचाई से उनको ग्राउंड में डालते हैं। जो सीड्स होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है तो वो तो ग्राउंड पे गिर जाते हैं, और जो हमने फ़ैन चलाया होता है साइड में, उसकी मदद से जो चैफ होते हैं, ये जस्ट बिकॉज ये बिल्कुल ड्राई होते हैं और ये आउटर कवरिंग ही होती है, तो वो अलग हो जाती है। while the chaff which is light enough flows away with the wind and falls separately. So this is the process of winnowing. Now come to our last activity, the storage of grains. After winnowing, the grains are dried in the sun. जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें धूप में सुखाया जाता है। द ड्राइड ग्रेन्स आर देन पुट इन गनी बैग्स। गनी मीन्स जो बोरी होती है हमारी, उसमें इन्हें भरा जाता है, जो बिग बैग्स होते हैं। एंड सेंड टू गोडाउन्स विच आर नोन एज ग्रेनरीज और सिलोज। उन्हें गोडाउन्स में भेजा जाता है, जिन्हें क्या बोला जाता है? ग्रैनरीज एंड सिलोज। सिलोज आर ड्राई कूल प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट, बर्ड्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। ये ड्राई कूल प्लेस होता है जहाँ पे रैट, बर्ड्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स नहीं होते। सो इन दी एंड हम अपनी ग्रेन्स को स्टोर कर लेते हैं। सो देयर इज़ अ फैक्ट फाइल दैट फेस्टिवल सच एज बैसाखी इन पंजाब, बिहू इन असम, ओनम इन केरल एंड पोंगल इन तमिलनाडु आर एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टिंग सीजन। यहाँ पे जो हार्वेस्ट करते हैं अपनी क्रॉप्स की कटिंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो आपने सुना होगा बैसाखी किस लिए मनाई जाती है? जस्ट बिकॉज जो हमारी राइप्ड क्रॉप्स होती हैं, मैच्योर क्रॉप्स होती हैं, डेवलप्ड क्रॉप्स, उन्हें हम कट करते हैं। सो वो हम बैसाखी पे करते हैं, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर द प्रोड्यूसिंग फूड. In this, you learn the different activities what a farmer do. You learn that firstly, the farmer prepare the soil in it. He do the process of plowing and leveling the soil. After that, he sowing the seeds by using hand and seed drills. Then, the process of manuring is done. After this, the irrigation process is done. Then the weeding. Then we protect our crops from the pests and diseases with the help of pesticides and insecticides. Then after that we harvest our crops, we cut down our crops, the ripe and mature crops. Then the process of threshing is done, we separate the grains from the harvested crops. Then the winnowing is done, we separated the chaff from our grains. Then we store our grains. So this is all the activity done by a farmer during cultivation. So this is all about your chapter, but your task is you have to read this chapter till this topic. Okay, thank you and take care.